Welcome students. In this video I am going to explain you a very important rule with respect to scope of variable. And in the last lecture I explained you what is local and global variable and what is local and global scope. I also explained with the help of various codes that what is actually the meaning of those scopes and variables in RAM. Okay, so from that concept you must be knowing this thing, that a variable till the time it is present in RAM can be used in various parts of the program, but you cannot use a variable after it vanishes from the program. तो लोकल वेरिएबल का स्कोप थोड़े से टाइम के लिए होता है, इसलिए उस टाइम पीरियड के बाद आप अगर उस वेरिएबल को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं तो आपको एरर आती है सेइंग दैट इट इज़ एन अनडिफाइंड वेरिएबल. लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रेजेंट रहते हैं और अब आपको वो वेरिएबल आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम. So this means you can utilize a global variable inside any part of the program. मतलब एक global variable को आप फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक local variable को आप उस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे. And the reason behind is that local variable will vanish from RAM as soon as the local scope will get over. लेकिन global scope तो प्रोग्राम के एंड होने के बाद ख़त्म होती है, तो उसका वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम अवेलेबल है, तो आप उस वेरिएबल को भी थ्रू आउट द प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में यूटिलाइज कर सकते हैं. नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कोड, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट नो व्हाट इज LEGB रूल. LEGB रूल इज द रूल विच विल हेल्प यू टू सर्च the version of a variable used inside a part of the program when it is present there, and then which version of it will be used. For example, suppose I take a global variable a with the value 10, okay, and now I create a function, suppose fun, okay, and in this function what I do, I create another variable a with value 5 and then I print a here, okay, and after this function I make a call to this function in the main program, okay, and I print a here also. Let me write here outside a. Now see this code. Here you have a variable 10 which is global, okay, it has been made outside of all the functions, so this is global. And you can see that inside the fun function also we have a variable a by the same name as global variable with the value 5. Now if I try to find out its output, देखिए यहाँ पे एक बार a यहाँ यूज़ हुआ है, एक बार a यहाँ यूज़ हुआ है, लेकिन कहाँ पे किस a का यूटिलाइजेशन हो रहा है ये आपको यहाँ पे देखना है, and that is decided with the help of this rule. Now see, when you go for execution of this program, what happens? Firstly, the global scope of the main program gets created, and within that what will happen? A will start pointing to 10, okay, and this one is global A. Remember, I am writing a small g with it so that it is visible, okay, and this is the global scope of main program. Now this line will be monitored syntactically, body will be ignored. You will come here, and as soon as you come here you jump from here to this place. Now when you come inside the body, you know that when the function is called, a local scope gets created or not for the function. So local scope of
fun function. This I explained in the last video. So local scope of fun function is created and you will get another variable a with value 5. Now you see, since their scopes were different, ये एक local a है, ये एक global a है, ये वाला a global variable है, ये वाला a local variable है, तभी आप इन दोनों local और global variable का सेम नाम रख पाए. अगर दोनों ही एक ग्लोबल होते तो आप ये काम नहीं कर सकते थे. क्लियर? सो यू कैन कीप सेम नेम फॉर अ वेरिएबल फॉर टू वेरिएबल्स बट इन डिफरेंट स्कोप. टू वेरिएबल्स विद सेम स्कोप विल नॉट बी एबल टू exist. This thing will be explained to you later on when I'll further go with the topic, but first of all here I am focusing upon LEGB rule. So see, when this line came, what happens? Local a gets created inside the local scope of one function, and then when it goes to print a, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये वाला जो a है ये कौन सा a प्रिंट होगा, ग्लोबल a कि लोकल a. यहाँ पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आता है LEGB रूल. अब यहाँ पे देखिए लोकल a भी है, ग्लोबल a भी है, लेकिन हम किसको प्रेफरेंस दें? तो LEGB रूल कहता है कि जब भी आपके पास कोई वेरिएबल को यूज़ करना हो और आपके पास उस वेरिएबल की मोर देन वन कॉपी है या फिर और भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो आप इस रूल के हिसाब से काम करिए. तो LEGB रूल सेज फर्स्ट ऑफ ऑल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एनवायरनमेंट, यानी जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है पहले आप उसको लोकल एनवायरनमेंट में ढूंढिए. अगर वो आपको लोकल एनवायरनमेंट में ना मिले देन लुक इन द एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट. एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट नेस्टेड फंक्शन के केस में आता है, जिसको हम थोड़ा बाद में अलग से लेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कोड. अगर लोकल में ना मिले तो एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में जाएं. एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट मतलब जब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है ना, तो जो इनर फंक्शन होता है उसका एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट आउटर फंक्शन होता है. तभी मैं कह रही हूँ कि ये नेस्टेड फंक्शन के केस में आपको ये क्लियर होगा. अब अगर एनक्लोजिंग स्कोप में भी ना मिले देन यू गो फॉर ग्लोबल स्कोप. लोकल में मिल गया, काम खत्म. नहीं मिला तो एनक्लोजिंग देखा, एनक्लोजिंग में मिल गया, काम खत्म. नहीं मिला तो ग्लोबल में देखा, ग्लोबल में ढूंढा, मिल गया तो काम खत्म. इफ नॉट फाउंड you will search in the built-in environment. Now what is this built-in environment? The built-in functions and variables that you have in Python library. फिर ये उसको वहाँ ढूंढेगा. अगर वहाँ भी नहीं मिला then ultimately it will give you error. तो इस सीक्वेंस में आपके वेरिएबल को प्रोग्राम को ढूंढता है और जिसमें मिल जाता है उसमें काम करके ख़त्म करता है, और नहीं मिलता है तो फिर वो उसको आगे पेरेंट एनवायरनमेंट में ढूंढते जाता है. तो सबसे पहले इसको ऐसे समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव लोकल स्कोप, देन आउटसाइड ऑफ इट यू हैव एनक्लोजिंग स्कोप, देन आउटसाइड ऑफ एनक्लोजिंग यू हैव ग्लोबल स्कोप, एंड आउट ऑफ ग्लोबल स्कोप यू हैव बिल्ट इन स्कोप. ओके, एंड if not found even till built-in scope, तब आती है error. Clear? So this is the code in front of me. So I have to print a here. So my LEGB rule says give preference to the local environment first. तो ये इसका local environment है, इसके पास कौन सा local a है? ये वाला a है ना, इसलिए जब आप प्रिंट करेंगे a को, ये वाले a का प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये आपको वैल्यू देगा 5. क्लियर? ठीक है, हमने इस स्टेटमेंट में ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये हमने LEGB से रिजॉल्व कर ली. अब हम इस फंक्शन से एग्जिट कर रहे हैं, मीन्स दिस फंक्शन इज नाउ ओवर, एंड एज सून एज द फंक्शन गेट्स ओवर व्हाट हैपेंस, द लोकल स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल वैनिशेस. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ
स्कोप इन रैम, ठीक है, ये रैम था, दिस यू नो। अब आप यहाँ आ गए हैं, इसका काम आप कर चुके हैं, यू हैव एग्जीक्यूटेड द फन फंक्शन कंप्लीटली, एंड नाउ you since you are not returning with any value, so you will go to the statement following the function call statement. Now when you come to this line, you again see that you have to print a. After writing outside is equal to, you have to print a. अब बात आती है कि ये वाला कौन सा a है, ये वाला a, ये लोकल वाला a होगा कि ये ग्लोबल वाला a होगा। अब आप जरा मेमोरी में देखिए, क्या कोई लोकल a एग्जिस्ट कर रहा है? कर ही नहीं रहा। तो कौन कर रहा है? ग्लोबल a एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कौन सा a होगा? ग्लोबल a होगा, क्योंकि आपने लोकल, ये एक तो ये मेन प्रोग्राम चल रहा है, मेन प्रोग्राम में कोई लोकल स्कोप है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस है कि ये ए ग्लोबल ए ही होगा, क्योंकि आप रैम की सिचुएशन देखो, इवन इफ यू वांट यू कैन नॉट एक्सेस लोकल ए बिकॉज लोकल ए इज नाउ नो मोर एग्जिस्टिंग इन रैम, ठीक है। सो हियर व्हाट विल बी द आंसर? आउटसाइड, outside is equal to 10. Clear? Now we will discuss 2-3 more examples to make you understand this rule even better. Now see, we have another code in front of you, and here you notice what is there. First of all, see, this one is the global a, global variable, okay, and see this function by the name fun. Here you see that I am printing a, लेकिन इस फंक्शन के पास अपना लोकल a नहीं है। ध्यान देना इस बात पे, पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें इस फन फंक्शन के पास अपना a भी था और ग्लोबल a भी था उस प्रोग्राम में, बट इन दिस कोड दिस टाइम आई एम नॉट हैविंग लोकल a, आई एम स्टिल यूजिंग दिस a. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है whether I am allowed to use this a here or not. एंड सेकेंड थिंग कि अगर हमें ये चीज़ अलाउड है कि अगर हम ये a यूज़ कर सकते हैं, तो ये a कौन सा a माना जाएगा, मतलब ये अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव टू डिस्कस इन दिस कोड। और फिर यहाँ देखिए, दिस इज़ द मेन प्रोग्राम. Here the function is being called first, and after that you are printing again a. Now this time which a is going to be printed, that also you have to see, ठीक है। So let us see the memory implementation of in RAM of this code. तो सबसे पहले क्या होगा? Execution. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड. देखो, हम मेन प्रोग्राम की लाइन यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज इट इज विदाउट एनी लेवल ऑफ इंडेंटेशन, सो इट इज अ पार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम ओनली, ठीक है. सो यू हैव सीन दैट इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स वी वर राइटिंग मेन हेयर ओनली, बट डजंट मैटर, यू कैन राइट इट इन द बिगनिंग ऑल्सो. Now see, but the provided condition is you should not leave any indentation here. Alignment should be same. Now see, this line is executed. But before this line, program started to get executed. Now when program started to get executed, then suddenly the global scope of main program got created in RAM. यही तो सबसे पहले होता है ना, सबसे पहले प्रोग्राम का, मेन प्रोग्राम का ग्लोबल स्कोप क्रिएट हो जाता है, उसके बाद ही प्रोग्राम में कुछ वर्किंग होती है. तो अब इस लाइन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, सो अ वेरिएबल विल बी क्रिएटेड हैविंग द वैल्यू 10 एंड a विल बी पॉइंटिंग टू इट, ठीक है. एंड विच काइंड ऑफ अ वेरिएबल इट इज ग्लोबल. वाई? बिकॉज इट इज क्रिएटेड इन मेन प्रोग्राम, इट इज आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस, सो इट इज अ ग्लोबल a. नाउ you won't come inside the function because execution will straight away bring you here. Now this one function is called. अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे. So you are getting transferred from here to here. And when function is called, the local scope of the function gets created. तो इस scope में अब हमारे fun function का scope create होगा, local scope. This is local scope of
फन फंक्शन। ठीक है, तो अब हमारा लोकल स्कोप ऑफ फन फंक्शन क्रिएट हुआ और इसके बाद हम इसकी बॉडी में आए। नाउ व्हेन आई केम इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस, आई सॉ दैट आई हैव टू प्रिंट इनसाइड and after that I have to print the value of a. Now what I found here that there is no local a. LEGB रूल कहता था कि जब भी कोई वेरिएबल यूज हो रहा हो आप सबसे पहले उसको लोकल में ढूंढिए, लेकिन लोकल में ढूंढने से पहले भी एक बात है, क्या हम a को यहाँ यूज कर सकते हैं? Yes, we can make use of a here. Why? Because according to LEGB सबसे पहले ये एरर नहीं दे देगा, ये एरर इन चारों को चेक करने के बाद देता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। पहले वो लोकल में ढूंढने की कोशिश करेगा, फिर वो एनक्लोजिंग में ढूंढने की कोशिश करेगा, फिर वो ग्लोबल में ढूंढेगा, फिर वो बिल्ट इन में ढूंढेगा, और जब बिल्ट इन में भी नहीं मिलेगा तभी वो एरर देगा। तो यहाँ पे भी तुरंत एरर नहीं आएगी। सो इट स्टार्ट सर्चिंग, उसने देखा लोकल में कोई ए नहीं है, देन इट गोज टू ग्लोबल। देखो एनक्लोजिंग तो यहाँ है नहीं, मैंने आपको बताया था कि इट हैपेंस इन केस ऑफ नेस्टेड। क्लियर, इट हैपेंस इन केस ऑफ नेस्टेड फंक्शन, सो एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट देयर। तो वो ग्लोबल में जाएगा। ठीक है, ग्लोबल में गया तो उसको एक ए मिल गया, तो उसने सिंपली उस ए को फेच किया और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे ए यूज करना गलत भी नहीं है, और यहाँ पे जो ए यूज होगा वो ग्लोबल ए यूज होगा। और क्यों ग्लोबल ए यूज हुआ? क्योंकि इसके पास अपना लोकल ए नहीं था। अगर इसके पास अपना लोकल ए होता तो ये कभी भी ग्लोबल ए को प्रिंट नहीं करता, क्योंकि लोकल ए होने पे ग्लोबल वेरिएबल अपने आप छुप जाता है, मतलब वो सब फंक्शन को दिखता ही नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे मान लो कि जब भी एक फंक्शन के पास अपना लोकल वेरिएबल होता है उसी नाम का जिस नाम का ग्लोबल वेरिएबल है, तो उस फंक्शन को ग्लोबल वेरिएबल दिखना ही बंद हो जाता है। लेकिन जब उसके पास अपना लोकल ए नहीं होता है तब वो ग्लोबल ए को ढूंढता है। तो यहाँ पे इसने पहले कोशिश की लोकल में ढूंढने की, लेकिन उसे नहीं मिला, तो फिर वो उसने एनक्लोजिंग हमारे पास था नहीं, ग्लोबल पे गए तो हमें ग्लोबल पे ए मिल गया। उसने सीधे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा इनसाइड 10. 10 is the value of global A, right? Then after this you return, देखिए आपने प्रिंट किया and you return, और जब आप रिटर्न होके आते हैं तो आप इस लाइन पे वापस आए, क्योंकि हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है, तो हम सीधे लाइन फॉलोइंग द फंक्शन कॉल पे आते हैं। और जब हम यहाँ आए तो हमने फिर से लिखा आउटसाइड इज इक्वल टू, ठीक है, इधर इक्वल टू लिखना भूल गए। एंड वन थिंग मोर आई फॉरगॉट टू टेल, that when you exit from the function, what happened in RAM? Don't forget this thing. What happened in RAM? Local scope of fun function got removed. Yes, जब हमने ये काम कर लिया, inside is equal to 10 लिख दिया, तो हमें वापस आना है यहाँ, और जैसे ही हम वापस आएंगे जो फंक्शन का लोकल स्कोप था वो RAM से गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम इस लाइन में आए तो आउटसाइड इज इक्वल टू का काम तो हो गया, लेकिन अगेन दिस क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज दिस ए, विच इज दिस ए, व्हाट विल गेट प्रिंटेड हियर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसे देखेंगे? ये तो मेन प्रोग्राम है ना, मेन प्रोग्राम में तो लोकल का कोई मतलब ही नहीं है। मेन प्रोग्राम में जब भी आप वेरिएबल यूज करेंगे तो वो सबसे पहले वो ग्लोबल देखेगा। देखो आप ग्लोबल पे ऑलरेडी हो इस समय पे, जब आप ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं यू आर ऑलरेडी एट द प्लेस ऑफ ग्लोबल, सो व्हाई विल यू सर्च इन लोकल एंड एनक्लोजिंग। लोकल और एनक्लोजिंग की बात तब आती है जब आप फंक्शन में होते हैं। जब आप मेन प्रोग्राम में होते हैं यू आर स्ट्रेट अवे इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, सो यू इफ यू डोंट फाइंड ए इन ग्लोबल एनवायरनमेंट यू विल सर्च इन बिल्ट इन एनवायरनमेंट, और अगर आपको बिल्ट इन में नहीं मिलता है तो फिर आप खत्म कर देंगे, एरर दे देंगे। ठीक है, लेकिन हमें इस प्रोग्राम में ग्लोबल ए मिल गया, सो दैट इज वाई हेयर ऑल्सो 10 गॉट प्रिंटेड। एंड नाउ you can see that the last statement of the program is over, everything is over, and now what happens when the program execution stops? The global scope vanishes from RAM along with all its variables, and therefore RAM will be left with nothing. RAM के पास अब कुछ भी नहीं बचेगा।
Okay. So now we will take up a last example for understanding this LEGB rule, and in this example you will get to have all these 4 situations. Okay, so see here we have, first of all I have written from math import I. What you know how to bring a particular particular item from library of Python. Okay, so for that what I have done, I have imported pi variable from the math module. Okay, so this is the inbuilt pi. Now this is a function example, and within this function you can see I have another function. So this is the nested function. This is the case of nested function where you will have the enclosing scope. Okay, I told you that for enclosing scope you need to have nested function. So I have taken this example here, and then you can see that this is the call to this calc function which is inside the example function. So example function is the caller of the calc function, and the calc function is present also within the example function. Now this portion is the main program. So the execution starts from the main program, you know. So the first statement in the main program is from math import I. So this particular pi will be imported from library, and then you will monitor, means interpreter will monitor this line but do nothing. Then all this comes under the body of इतना पूरा पोर्शन, ये पूरा एग्जाम्पल फंक्शन की बॉडी है जिसको इंटरप्रेटर अभी के लिए इग्नोर कर देगा, और क्या होगा आप सीधे यहाँ आ जाएंगे। लेकिन आप जानते हो कि हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो रैम में क्या होगा, सबसे पहले रैम में ग्लोबल स्कोप रेडी होगा। सो दिस इज ग्लोबल स्कोप ऑफ मेन प्रोग्राम। ओके, एंड वी केम हियर and we saw a variable a getting made. So what will happen, this a will be a global a, right, and it will be pointing to 10, and when you execute this line you are making a call to example function, और जैसे ही कोई function कॉल होता है तो उसका स्कोप बनता है मेन प्रोग्राम के स्कोप के अंदर। तो अब एग्जाम्पल फंक्शन का लोकल स्कोप बनेगा, you will have a local scope of example function, and you jump from here and you come to this place. No arguments are going, so and we have no parameters, so no argument and parameter matching will take place, and we'll straight away come to this line. Now see, this variable is created inside the function, so it is a local variable to the example function. So what will happen, you will have 15 and num1 pointing to it. Now we came to this line. Now focus here, num1, अब इसको प्रिंट करना है तो इसे ढूंढना पड़ेगा, और जब इसको ढूंढने चले तो सबसे पहले कहाँ ढूंढेंगे, लोकल में। एंड सी आई एम फाइंडिंग num1 in local environment, so no problem, straight away it prints the value of num1 on output screen. So I am making output screen here, num1 value is 15 will get printed. Clear? Now you came to this statement, and this statement is utilizing a. So again, जब भी कोई लाइन एग्जीक्यूट होती है प्रोग्राम की और उस लाइन में कोई भी वेरिएबल यूज होता है तो वो सबके लिए अलग अलग सर्चिंग स्टार्ट करता है। मतलब जब हम इस लाइन पे थे तो वो num1 को ढूंढने जाएगा और इन सारे रूल के हिसाब से उसको ढूंढेगा। फिर जब वो इस लाइन पे आएगा तो अब वो a को ढूंढना स्टार्ट करेगा, और जब a को ढूंढेगा तो वो सबसे पहले जाएगा लोकल एनवायरनमेंट के पास। सो कैन यू फाइंड एनी लोकल a ओवर हियर? नो। सो यू गो टू एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट, लेकिन एग्जाम्पल फंक्शन के पास कोई एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट नहीं है। एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट कैल्क फंक्शन के पास है लेकिन एग्जाम्पल के पास नहीं है, तो एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट का ऑप्शन जाता है यहाँ से। देन वी कम टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट, एंड व्हाट हैपेंस when I go to the global environment, I find a present there. So which a will get printed here? Global a. So 10 comes as the output. तो देखा, जब उसको लोकल में a नहीं मिला तो
तो उसने एनक्लोजिंग में ढूंढना चाहा लेकिन एनक्लोजिंग था नहीं, तो फिर वो ग्लोबल पे गया तो उसको ग्लोबल में ए मिल गया और उसने ए को प्रिंट कर दिया। और हम इस ए को यहाँ यूज़ कर भी सकते हैं, इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि ए यहाँ पे अलाइव है ना रैम में। हम बस ऐसे वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते जिसको जो रैम में प्रेजेंट ना हो। नाउ कम टू दिस फंक्शन, नो देन यू कम टू दिस लाइन, और यहाँ से क्या होगा, आप जाएंगे इस फंक्शन में, तो क्या होगा, कैल्क फंक्शन का लोकल स्कोप बनेगा। ठीक है, कैल्क फंक्शन का लोकल स्कोप बना। अब ये क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 50, तो ये कहाँ बनेगा, कैल्क के लोकल स्कोप में। नाउ सी यू आर प्रिंटिंग x, इट विल सर्च फॉर x इन लोकल, मिल गया, 50 will be printed. Okay, then A, अब ये अगेन A ढूंढ रहा है, क्या उसको अपने लोकल एनवायरनमेंट में A मिला, नहीं मिला। देखिए अपने लोकल में उसको A नहीं मिला, अब वो एनक्लोजिंग में जाएगा, और एनक्लोजिंग कौन है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में भी A नहीं प्रेजेंट है, तो अब वो किस में जाएगा, ग्लोबल में, और ग्लोबल में उसे A मिल जाएगा, तो ये फिर से वही A प्रिंट करेगा जो कि ग्लोबल A है, दैट इज 10। बात समझ में आई, आपकी बार लोकल में नहीं मिला, ग्लोबल में नहीं, एनक्लोजिंग में नहीं मिला, ग्लोबल में मिला, ग्लोबल का प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद आया num1। अब num1 को जब वो ढूंढने गया तो लोकल में उसको नहीं मिला, लेकिन एनक्लोजिंग में मिल गया, तो आपकी बार num1 उसे कहाँ मिला, एनक्लोजिंग में मिला, इसलिए इसने num1 प्रिंट किया 50। क्लियर, नाउ प्रिंट पाई, ना इट गोज फॉर सर्चिंग पाई, तो उसको लोकल में पाई नहीं मिला, एनक्लोजिंग में भी पाई नहीं मिला, ग्लोबल में भी पाई नहीं मिला। व्हाट वाज द फोर्थ ऑप्शन, बिल्ट इन पाई। सी बिल्ट इन पाई इज प्रेजेंट और नॉट, yes it is present, so this time what will be printed, you know the value of built-in pi is 3.14 and something value, but I am just writing 3.14 here, so pi will get printed. So you have seen कैसे इसने पाई को ढूंढा और किस ऑर्डर में ढूंढा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी लाइन और लिख दूँ, सपोज प्रिंट n। अब n एक ऐसा वेरिएबल है जो उससे ना ही लोकल में मिलेगा, ना ही एनक्लोजिंग में मिलेगा, ना ही ग्लोबल में मिलेगा, और ना ही उसे बिल्ट इन में मिलेगा। इस पे ये हमें देगा एरर, बट आई हैव नॉट रिटन दिस लाइन, सो आई गेट दिस मच आउटपुट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन से एग्जिट हो जाएंगे। ये सब काम हो गया। और जब ये अब देखो जैसे जैसे हम फंक्शन से एग्जिट हुए, अभी हम कैल्क से एग्जिट हुए, अभी कैल्क से एग्जिट हुए, तो कैल्क का लोकल स्कोप गायब हुआ। उसके बाद हम एग्जाम्पल से एग्जिट हुए, तो एग्जाम्पल का लोकल स्कोप गायब हुआ। सी द सीक्वेंस इन विच लोकल स्कोप्स एंड ग्लोबल स्कोप्स आर वैनिशिंग फ्रॉम रैम। और जब एग्जाम्पल का लोकल स्कोप खत्म हुआ तो आप मेन प्रोग्राम का सब काम कर चुके हैं। नाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज एंडिंग, सो ग्लोबल स्कोप ऑफ मेन प्रोग्राम विल वैनिश फ्रॉम रैम। सो व्हाट इज लेफ्ट इन रैम? अगेन at the end, nothing. RAM is empty, work is done, output is generated. So this is the role of LEGB rule in finding any variable which is used inside the program. तो इस ऑर्डर में वो वेरिएबल को ढूंढेगा और जहाँ जहाँ मिलता जाएगा वहाँ वहाँ प्रिंट करता जाएगा, और जैसे ही उसको एंड तक नहीं मिला, it will simply give you error and the program will end. So with this children, I finish this lecture. I hope all of you must have understood the concept of LEGB rule nicely. Just go through the video again if you have any confusion. And in the next lecture, I'll be discussing the role of global keyword and some more situations which come across when you try to modify a variable which is there in global scope as well as in local scope, and what all is there, that will be discussed in the next lecture. And till then it's over.